So hello, I am Suraj Kumar Naik, and today I am gonna start a new series, organic series. As I promised in my last video that I will cover up organic. So yes, this is my commitment, and I will do this. So yes, organic chemistry. A lot of people find it difficult to learn organic chemistry, and yes, it is difficult. But if you will learn it thoroughly and on a good daily basis, then it is the easiest thing in organic chemistry, because in NEET exam or any other exams, organic chemistry will not invest much time in one question. It will be done in a few seconds. So that's why I am going to teach you, because GOC1 and GOC2 are the prime chapters फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एक बार ये हो गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है. सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट, एंड सो hope you will like it. First time I'm going to teach, yes, so hope it will be a good. So today we will going to discussing about inductive effect, the first effect of GOC1. And so without getting delay, let's get started. First of all, we will talking about cleavage. So cleavage are two types. First, homolysis, and the second, heterolysis. So what is homolysis and what is heterolysis? So homolysis means if you cleavage this bond, then in homolysis you will get carbon free radicals. But in heterolysis it will cleave like carbocation and a carboanion. This is the major difference between homolysis and heterolysis. In homolysis you will get carbon free radicals, but in heterolysis you will get carbocation and carbanion. So there are a lot of conditions for homolysis, heterolysis, free radical cleavage, which we will learn in GOC2. So then in heterolysis we will talking about hetero. In heterolysis there are four major effects. First of all, in heterolysis, basically in homo also, but basically in heterolysis there are four major effects. First of all, inductive effect. Second, resonance effect. And the third, hyperconjugation effect. And the fourth, electromeric effect. So remember one thing, these three effects are permanent effect, but this is a temporary effect. So this is a one thing that you have to be remembered, and it is asked, पूछा गया है ये बहुत बार कि ये कौन से इसमें से परमानेंट इफेक्ट है, कौन सा टेम्पररी इफेक्ट है. So first three are permanent effect and the fourth is a temporary effect. So why? We will learn it, electromeric effect. So let's go to our first, inductive effect. So what is inductive effect basically? So if you have any compound, let we say a carbon and a carbon bond, and it और यहाँ पे तीन
बॉन्ड के साथ 3 एटम्स जुड़े हैं और यहाँ पे 3 बॉन्ड के साथ 3 एटम्स जुड़े हैं। सो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे H है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे इसका वैलेंसी है -3 और यहाँ पे +3। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा नेगेटिव कार्बन के पास अट्रैक्ट होके तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बीच में होना चाहिए वो थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो जाती है, थोड़ा सा नेगेटिव कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाती है। जब क्लीवेज होगा तो एक बॉन्ड, जब क्लीवेज होगा ना, देखो ये 2 कार्बन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका भी पार्ट है, ये इसका भी पार्ट है, बट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ये नेगेटिव कार्बन के यार थोड़ा शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब नेगेटिव कार्बन आटम पॉजिटिव कार्बन आटम के 2 इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करके रखेगा, अपने ओर टाइटली बाउंड करके रखेगा। सो दैट्स वाई जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तब ऐसे जाता है और यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है अपने ओर से। सो यही है इंडक्टिव इफेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट कि नेगेटिव कार्बन आटम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करके रखता है, एंड दैट्स ऑल, और कुछ नहीं ज़्यादा है इसमें। दिस इज़ ऑल अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, दैट ए नेगेटिव कार्बन attracts the bond electrons toward itself. So let's talk about the conditions. Inductive effect is inversely proportional to distance. Distance inversely proportional. That means if there are these bonds, so ये कार्बन के पास ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इसके पास थोड़ा कम, इसके पास थोड़ा कम, और 3 कार्बन के बाद वो 0 हो जाता है। 3 कार्बन आटम तक यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, इसके ये, तो 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दैट मीन्स विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। सो देन वी विल गो to a step further, that the inductive effect of hydrogen is 0 by convention. हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, बाय कन्वेंशन है ये, इसको अज्यूम किया गया है कि ये 0 होगा। देन we'll talking about the plus I effect and minus I effect. So basically what is plus I and what is minus I? So plus I means it will donate this electron to atom. So what is it is? And minus I means it will attract the electrons towards itself. एग्जाम्पल के साथ थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, एग्जाम्पल्स दूंगा मैं ख़त्म होने के बाद, तो अब तुम इतना याद रखो। प्लस आई मीन्स इट विल डोनेट, माइनस आई मीन्स इट विल अट्रैक्ट। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स। प्लस आई मीन्स इट विल डोनेट इन इलेक्ट्रॉन, माइनस आई मीन्स इट विल विथड्रॉ द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। So there is a basically a order which will determine the power of plus I and power of minus I. So I will dictate it here. So
लिख लेना कहीं पे भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। पूछा जाता है, 18 में पूछा गया था, डायरेक्ट ऑर्डर पूछे जाते हैं, तो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट प्लस आई, द ऑर्डर ऑफ प्लस आई। फर्स्ट CH2 minus is greater than NH2 minus is greater than O minus is greater than C double bond O minus is greater than CH3 then 2 डिग्री then 1 डिग्री। सो 1 डिग्री में भी 3 डिफरेंट आएंगे, CT3 CD3 एंड CH3। तुम्हें ये बहुत लोग नहीं बताएंगे, पर ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, पूछा जाता है, तो याद रख लेना, डिफ़िकल्ट नहीं है। सो इट इज़ द ऑर्डर CH2 माइनस NH2 माइनस O माइनस CO माइनस देन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इट्स ए सिंपल ऑर्डर। डिफ़िकल्ट आएगी माइनस आई ऑर्डर को याद रखने में, तो वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला ऑर्डर, तो तुम थोड़ी सी बेसिक से भी जान सकते हो, दैट अनायन is greater than neutral for plus I। प्लस आई के लिए अनायन न्यूट्रल से ज़्यादा होता है। अनायन का प्लस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन न्यूट्रल। यू कैन सी हियर दैट फर्स्ट द अनायंस एंड देन द न्यूट्रल्स, and then the most important order, very important, the minus I। माइनस आई का ऑर्डर ध्यान रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आएगा NH3 माइनस इज ग्रेटर देन NR3 minus is greater than NH3 minus is greater than N double bond O is greater than C triple bond N is greater than COOH is greater than CHO is greater than halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine greater than OR greater than OH greater than C triple bond CH greater than NH2 greater than benzene and greater than CH double bond CH2। Yes, I know it is a difficult order. I will see you again. NF3 minus NR3 minus NH3 minus then NO2 CN COH CHO, fluorine, chlorine, bromine, iodine, OR minus OR OH triple bond CH NH2 benzene CS double bond CH2। yes, it's a difficult order but you have to be remembered it। तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ये। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट्स जितने सवाल आएंगे ना, जितने भी आएंगे उसी से आएंगे जो मैंने पढ़ाया है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। एक भी सवाल बाहर से नहीं पूछा जाएगा। सो थोड़ी और डीप जाएंगे। तो फर्स्ट हम बहुत कंडीशंस होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, कहाँ कहाँ अप्लाई करा जाता है। तो फर्स्ट होगा द स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन के लिए द प्लस आई so remember one thing that before it I will tell you one thing. एक बात याद रखना, फर्स्ट हमेशा DNP रूल लगाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग नहीं बताएंगे ये रूल, बट मैं बता रहा हूँ, समझना, अच्छे समझना, सारे सवाल बन जाएंगे इससे। DNP रूल, डिस्टेंस नंबर पावर। जब भी तुम कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी चेक करोगे, फर्स्ट देखोगे डिस्टेंस कि कौन कितने डिस्टेंस पे है, फिर देखोगे नंबर कि कितना नंबर है, फिर देखोगे पावर। पावर मतलब जो ऑर्डर बताया मैंने। तो एग्जाम्पल जब करोगे तो और क्लियर हो जाओगे। तो सोच रहा हूँ कि कुछ न्यूमेरिकल्स कराने का, पता नहीं कहाँ कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इतने न्यूमेरिकल्स कराने का। तो यू कैन ट्राई एनी बुक। तो मैंने रिकमेंड किया था NCERT इज़ ए गुड बुक, पर मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक के लिए NCERT थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ, इफ़ यू वांट एनी लाइक पर्सनल क्वेश्चंस, तो इंस्टाग्राम में मैं हूँ, यू कैन फॉलो देयर एंड आस्क योर पर्सनल डाउट्स। और यस, तो मैं सोच रहा हूँ आज के लिए इतना होता, इतना दिस इज मस्ट एनफ, मोर देन एनफ आई थिंक फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। सो चारों इफेक्ट पढ़ाने के बाद हम कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी, सारा फैक्टर्स एक साथ हो जाएगा। तो वो एक अच्छा रूल है मेरे ख्याल से। सो एक बात याद रखना, जिनको पता नहीं है कुछ भी, कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की क्राइटेरिया सेम है। मतलब यहाँ पे तुम जैसे स्टेबिलिटी चेक करोगे, यहीं पे भी वैसे ही स्टेबिलिटी चेक करोगे, पर कार्बोएनायन के लिए ये डिफरेंट है। बाद में बात करेंगे, पर ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं कि कार्बोकैटायन के लिए और कार्बन फ्री रेडिकल के लिए, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है, तो कार्बन फ्री रेडिकल के लिए सेम क्राइटेरिया स्टेबिलिटी का, पर कार्बोएनायन के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। मेरे ख्याल से अच्छा वीडियो है, इंडक्टिव इफेक्ट समझ में पूरा आ गया होगा। और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है सबके लिए, या फिर इंस्टाग्राम में तो हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा द सेकंड इफेक्ट, द रेजोनेंस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट। सो टिल नाउ, बाय बाय, सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग।